In the last class, we were talking about the different types of starters. I have already elaborated you the use of starter. Why we are using starter? Starter is meant for first primary function is to limit the starting current. In addition to this, limiting the starting current, it also what it do? It also provide protection against overload. Okay. What else? What are the other benefits? What are the other benefits? Provide protection against low voltage situation and also protect against single phasing. And the first and the foremost starter which we have studied yesterday was what? DOL, direct online starter. Okay. And I have explained you through my pictures also that there is a not only protection from the starting current but protection from the overload is also there. A relay is being used. Okay, as soon as the relay trips, okay, the circuit is breaked. Is it clear? Now this is what? This is for the overload. This is a bimetallic strip. What is this? Bimetallic strip. Okay, so as soon as it will heat up, when will it heat up? When the current will exceed the overload current. Okay. So when it will expand, and as soon as it expand, the contact will get open. The contact will get open, and the motor will be saved from the overload situation. Okay. Then we have also discussed that in addition to this working of the DOL starter, we have studied it. Okay. So here MCCB or fuse are being connected. Okay. Fuse, what is the purpose of MCCB or fuse? If from grid, if any excessive current is there, then the fuse will blow off, and therefore will be saved the appliances. Will save the appliances. Okay. This is the complete schematic diagram. We have already discussed the advantage of DOL starter. It is very economical. Okay. The relays they are very cheap, and therefore it is an economical way of using this for the starting of the induction machine. Controlled circuitry is simple, easy to find fault and make necessary connection, and it is compact in size and therefore occupy less space. Then there are other methods also. What are that methods? For squirrel cage, and which is the second type motor? Phase wound motor or slip ring motor. Okay. So for a squirrel cage motor, what happens? We have to limit the current, and to limit the current, we can decrease the voltage, and this decreasement in the voltage can be done by providing the impedance. How we can provide the impedance? Either by inserting and resistance or by coil. So first method is by inserting primary resistors. Primary resistor means resistor connected with the stator winding. So initially you provide maximum resistance, so the current will be small, and slowly you reduce the resistance as the motor picks up the speed. Is it clear? Another way of using the coil. Now it is a three-phase system. So three-phase system is how many coils will be used? 3 coils. How many coils will be used? 3 coils. So 3 coils means it will be acting as an auto transformer. Okay, so what happens in auto transformer? You might have seen single phase auto transformer. Similarly, there is a 3-phase transformer is there. So we have not only single phase auto transformer, we have for 3-phase motor, which type of 3-phase auto transformer. Now again the same thing is there. We start from 0 and we keep on increasing the voltage from low to higher.
is there. So initially voltage is less, so current will be less. So you are getting my point. There are two methods. In the resistor method, what are you doing? You are providing resistance. Voltage is same, but you are increasing the voltage resistance first and then reducing it till the motor picks up the speed. In auto transformer, what you are doing, you are providing an impedance also, and slowly you are increasing the voltage. So both method you are providing. Is it clear? So limiting the current also to voltage as well as by impedance. Clear? The third method, which is the frequently used for high rated machine, that is the star delta starter. What is that? Star delta starter. Now what is star delta starter? As the name suggests, ki the motor will be connected in star, and as soon as motor will pick up the speed, it will be again connected into delta. How it is being accomplished? Now this has to be accomplished automatically. Is it clear? How it is accomplished, that we will see when it will propose the diagram. Another is slip ring motors. अब slip ring motors हैं तो क्या मतलब हुआ? मैंने जब आपको बताया था क्लासिफिकेशन, तो स्लिप रिंग कहाँ लगी हुई होती है इंडक्शन मोटर में? On the rotor side. On the rotor side. Okay. So since already slip rings are there, therefore we connect resistance or rheostat in all the three slip rings, and thereby we can control the current and thereby the speed. Is it clear? So this is the another method of controlling the starting methods for the slip ring induction motor. Now let us come one by one. First we will take squirrel cage motor. We will take squirrel cage. In squirrel cage motor there is no such. In squirrel cage there is no such. Slip rings are there. Mind it. You remember the construction of slip ring in the squirrel cage motor? What is there? Stator, core, inside it, slot on it, accommodated what? Three-phase winding. Then rotor of which shape? Cylindrical shape with core having slot on its outer periphery. In this outer periphery, in these slots, what is accommodated? क्या लगता है उसमें? Bars. कौन से bars? Copper or aluminium bars. And these bars are short circuited. These bars are short circuited. And in this way, the rotor looks like an cage of an squirrel. Cage of an squirrel. And therefore, this is known as squirrel cage motor. So we will talk about the squirrel cage motor. So there is no chance of connecting any type of rheostat on the rotor side, because it is. Can we use this method? Rotor rheostat or rotor resistance starter. Can we use on induction motor? No. Why? Because slip rings are not provided on the rotor. Rotor is short circuited. Therefore we cannot connect any resistance to it. So only thing is that we can control on the stator side. We can control on the stator side. So the first method is primary resistor. अब primary resistor में क्या करते हैं सर? ठीक है. This is the schematic diagram. You can see this is the three-phase supply. What is this called? What is this? This is switch. This is switch. And which type of switch? Now what this straight line is indicating? One, and generally you see switch is made like this. These are the two contacts and it is made like this. This is the schematic diagram of the switch. But here you are seeing how many switches? And straight line is being shown. What does this mean, straight line? That all the threes will be operated simultaneously. Three pole. It is a three pole switch. Three pole single throw switch. Three pole single pole switch means as soon as you, just like we have MCB now. Okay, it is just MCB only. You just on it, all the three will be simultaneously operated and it will get closed. Now with these switches, with this contact is connected what? Variable resistor, a rheostat. One in R phase, another is
biphase, another in three-phase. Is it clear or not? So, and which form, variable or fixed? Rheostat, you know, has how many terminals? Rheostat had 3 terminals. 1, 2 and 3. So here you can see that one fixed terminal is being used and another is variable, while the second fixed terminal is kept open. So we can use the rheostat in which form? Variable form. In which form? Variable form. Is it clear? So what happens that the 3 resistance are added in series with the winding. In series with the winding. Winding ये है, तो ये किस में लगा हुआ है? स्टेटर वाइंडिंग की, ये रियोस्टेट स्टेटर वाइंडिंग के किस में लगा हुआ है? सीरीज में. इज इट क्लियर? तो सीरीज में लगने से सीरीज में रेजिस्टेंस का क्या होता है? एडिशन और सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? एडिशन. सो रेजिस्टेंस गेट इंक्रीजेस. रेजिस्टेंस गेट इंक्रीजेस. सो द इनिशियली द रेजिस्टेंस इज कैप्ड मैक्सिमम. इनिशियली रेजिस्टेंस इज कैप्ड. देखिए ये सब चीजें बात है. पहली बात तो ये किस में लगा हुआ है? सीरीज में. दूसरा, इनिशियली सारे रियोस्टेट की वैल्यू जैसे मान लो 480 ओम है, 500 ओम का आपने रियोस्टेट लगाया. कितने का? 500. तो इनिशियली इस वेरिएबल को, जो वेरिएबल पॉइंट है, इस प्रकार रखा जाएगा कि टोटल रेजिस्टेंस इंक्लूडेड इन द सर्किट इज हाउ मच? 500. इज इट क्लियर? इन ईच फेज. अरे समझ में आया कि नहीं आया? क्यों पहले मैक्सिमम क्यों करते हैं? Why maximum is placed? In order, because we know that I is equal to V by Z. If I increase this Z, now this Z has R component also. Is it not? If I increase this Z, what will current will increase or decrease? Decrease. And that is our main purpose. That is our main purpose कि हमारा काम क्या है? स्टार्टिंग करंट को रिड्यूस करना है. तो हमने क्या किया? इनिशियली हमने मैक्सिमम किया. ओके. और इसके कारण क्या होगा? जब मैक्सिमम रेजिस्टेंस है तो वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे कितना होगा? वो भी मैक्सिमम होगा. बिकॉज वोल्टेज ड्रॉप इज हाउ मच? V इज इक्वल टू आई आर. I is very large, so R is large. Okay, so the voltage get reduced, and thus reduced voltage is applied across the motor winding, stator winding. Reduced voltage होगा तो reduced current होगा. Is it clear? And thus the motor is saved. Okay, from the initial when high resistance is connected in the circuit. And as the motor picks up its speed, so you reduce the resistance and ultimately make it zero. ठीक है. लेकिन जो स्टार्टिंग पीरियड में शुरू में जो करंट आया उसके कारण तो लॉसेस हुए. कितने लॉसेस हुए? I स्क्वायर R तीनों फेज में. सो इट विल गेट मल्टीप्लाई बाय 3. ओके, सो लॉसेस से क्या होता है? लॉसेस से क्या होता है? लॉसेस से क्या नुकसान है? एफिशिएंसी, दक्षता मशीन की कम होती है. ठीक है, तो हमने एक काम को सिद्ध करने के लिए एक नुकसान कर दिया. एक काम क्या था हमारा? टू रिड्यूस द स्टार्टिंग करंट. वो तो हो गया, लेकिन साथ साथ में क्या हो रहा है? हमारे लॉसेस हो. तो क्या ये फायदे का सौदा है? नो, इट इज नॉट एन economical method. Is it clear? So what we'll do, we go for another, but before that, okay, let's elaborate what are the different things. The starter is simple, बिल्कुल सिंपल है. क्या किया हमने? 3 फेज में 3 रियोस्टेट लगा दिए वेरिएबल फॉर्म में. ठीक है, और उनको चेंज करते जाओ और आपको स्टार्टिंग करंट रिड्यूस हो जाएगा. ठीक है. दूसरी बात क्या है कि ये आपकी देखिए 3 फेज वाइंडिंग है. आपकी मोटर की कौन सी वाइंडिंग है? इसमें कौन से 2 कनेक्शन पॉसिबल है? या तो आपकी वाइंडिंग किसमें हो? स्टार में या डेल्टा में. और ये मेथड जो है ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है. ये मेथड अभी मैंने आपको फिलहाल किस में दिखा रखा है? स्टार में. लेकिन ऐसा मत करना कि ये स्टार के लिए एप्लीकेबल है. इट इज एप्लीकेबल फॉर डेल्टा. मैं इसकी जगह डेल्टा बना दूंगा. मान लो सपोज मैं डेल्टा बना देता हूं आपके. तो क्या मैं यार यहां रियोस्टेट लगा दिया,
यू गॉट माय पॉइंट। इसी प्रकार एक रियोस्टेट ये लगा दिया। सो द रजिस्टर मेथड कैन बी अप्लाइड फॉर स्क्विरल केज मोटर आइदर हैविंग डेल्टा और स्टार। तीसरा इसका क्या है, इसकी तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या, लार्ज पावर लॉसेस ड्यू टू रेजिस्टेंस। ड्यू टू रेजिस्टेंस में लार्ज पावर लॉस होता है, जिससे कारण क्या होता है, हमारी एफिशिएंसी रिड्यूस होती है। ठीक है, एक अनावश्यक खर्चा, एक खर्चे को बचाने के लिए हमने एक दूसरा खर्चा और कर दिया। अच्छा, जो स्टार्टिंग टॉर्क है, ठीक है, वो रिड्यूस हो जाता है। वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, व्हाई it reduces? Because the voltage is reduced. The voltage is reduced. Okay, so a mathematical equation has been given. How will you define the power? उस दिन भी बताया था आपने, मैं फिजिक्स पढ़ी होगी। ठीक है, पावर कैसे डिफाइन करते हैं? वर्क अपॉन टाइम एक डेफिनेशन है, और लीनियर मोशन में पावर कैसे डिफाइन करते हैं? फोर्स इनटू वेलोसिटी। अब यही रोटेशनल मोशन है, पावर को कैसे डिफाइन करेंगे? फोर्स की जगह क्या आ जाएगा, टॉर्क, और v की जगह क्या आ जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी। अरे समझ में आया कि नहीं? ये मैंने उस समय भी बताया था जब आपके ये पावर इक्वेशन डेवलप की थी, और मैंने बताया था कि जो नेट पावर आती है वो फिर एयर गैप पावर, कुछ लॉसेस होते हैं, स्टेटर कॉपर लॉस होते हैं, उसके बाद एयर में क्या मिलती है, उसको क्या कहते हैं, एयर गैप पावर। एयर गैप पावर के बाद रोटर में लॉसेस होते हैं, और ये एयर गैप पावर हमें दो प्रकार में मिलती है, एक तो रोटर कॉपर लॉस और दूसरी ग्रॉस मैकेनिकल पावर। और ग्रॉस मैकेनिकल पावर में से फिर क्या, विंड फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस माइनस होते हैं, तो हमें क्या मिलती है, नेट मैकेनिकल पावर एट द शाफ्ट और द शाफ्ट पावर। अरे समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो यहां पर भी हमने यही किया है कि हमने इक्वेशन लिखी है, T is the torque developed and P2 is the rotor input, power input to the rotor at a speed of ns, at the speed of ns. So as the torque is proportional to power, torque is proportional to power. Okay, so and what is this power is dependent upon the what, this power, as we already, total copper loss upon S, total copper loss upon S. Is it clear? So what is copper loss here in a rotor? 3I2R square to R2 upon S. Okay, so torque is proportional to rotor current square. Torque is proportional to rotor current square and also inversely proportional to slip. ये तो हम पहले ही हम कर चुके हैं, जो सर्किट बनाया था ना, उसको वापस एक तरह से समझाया है। ठीक है, and also we know that the rotor current is dependent on whom? रोटर करंट डिपेंडेंट ऑन whom? स्टेटर करंट। भाई रोटर में कैसे पता होगा, किसके कारण होगा? सो आई कैन ऑल्सो से दैट दिस टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू I1, that is I1 is your or IS, whatever you can write down. Is it clear? So what conclusion you are get, that the starting torque is directly proportional to the stator starting current. Is it clear? So ultimately we found that the starting current is, the starting torque is reduced. Why it is reduced? Because the starting current is reduced. Is it clear? And what is the peculiar phenomena, peculiar characteristics about the induction machine? That it is a self-starting machine. It is a self-starting machine. Is it clear? तो शुरू में करंट ज्यादा होता है, तो हमने एक मेथड इस्तेमाल किया। कौन सा इस्तेमाल किया? By reducing its current through resistor. Okay, but it is not economical. Okay, so this method is useful for only small machine. It is useful for small machine. 1 HP की या 2 HP की मशीन है, वहां पर हम यूज कर सकते हैं, लेकिन नुकसान तो उसमें भी है। तो हमने एक दूसरा मेथड यूज करते हैं। वो क्या कहलाता है मेथड? ऑटो ट्रांसफॉर्मर। क्या कहलाता है? ऑटो ट्रांसफॉर्मर। कुछ नहीं, ऑटो ट्रांसफॉर्मर क्या है? ऑटो ट्रांसफॉर्मर में कितनी कॉइल होती है? एक सिंगल फेज ऑटो ट्रांसफॉर्मर कितनी कॉइल होती है, बताइए? सिंगल कॉइल होती है। कितनी होती है?
सिंगल कॉइल होती है, ठीक है। जबकि ट्रांसफॉर्मर में कितनी कॉइल होती है? देखिए, दो वर्ड कह रहा हूं मैं, एक ऑटो और एक सिंपल नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर, बल ट्रांसफॉर्मर। बताइए दोनों में क्या फर्क है? इसमें कितनी कॉइल होती है? सिंगल फेज है, ये भी सिंगल फेज है। इसमें कितनी कॉइल होगी? सिंगल। और इसमें 2। इसमें कितनी होगी? प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी। जबकि ऑटो ट्रांसफॉर्मर में जो प्राइमरी है वही क्या है? सेकेंडरी। इज इट क्लियर? तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर इज मोर। एंड व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर? आप लैब में भी यूज करते हैं। ऑटो ट्रांसफॉर्मर का मेन पर्पस क्या है? टू वेरी विच वोल्टेज? टू वेरी एसी वोल्टेज। टू वेरी एसी वोल्टेज। अब एसी वोल्टेज को वेरी करना है, ठीक है, हमें एक मेथड मिल गया। तो अब हमें क्यों ना इस ऑटो ट्रांसफॉर्मर को 3 फेज बनाया जाए। बेसिकली है क्या, उसमें कॉइल ही तो है। तो आप यहाँ देखिए, हमने रियोस्टेट ने यूज करके क्या यूज किया है? 3 कॉइल्स, 3 इंडक्टिव कॉइल्स, एंड thus making it as an auto transformer. Is it clear? तो ये इसका देखिए स्कीमेटिक डायग्राम यहाँ देख लीजिए। जहां जहां वहां क्या यूज किया था? रियोस्टेट। और यहाँ क्या यूज किया है? 3 coils, 3 inductive coils which are connected in which form? Star. Which are connected in star form. 3 कॉइल ली, उनके सेकंड एंड को हमने न्यूट्रल पॉइंट बना दिया और बाकी दूसरे एंड को हमने क्या दे दिया? R/B सप्लाई। इज इट क्लियर? अब इसमें ये भी वेरिएबल फॉर्म में, ये भी किस फॉर्म में? जैसे रियोस्टेट किस फॉर्म में था? वेरिएबल फॉर्म में। अब तो हमारे पास ये 3 वेरिएबल। फर्स्ट वेरिएबल गोज टू फर्स्ट स्टेटर वाइंडिंग, सेकंड वेरिएबल गोज टू सेकंड वाइंडिंग, एंड द थर्ड वेरिएबल पॉइंट गोज टू थर्ड स्टेटर वाइंडिंग। इज इट क्लियर? नाउ यू जस्ट, आपने देखा होगा ऑटो ट्रांसफॉर्मर, आप एक घुमाते हैं, एक नॉब होती है ना ऊपर, उसको आप घुमाते हैं। इज इट क्लियर? सो व्हाट इज दैट? दैट इज द वेरिएबल पॉइंट। इज इट क्लियर? सो इनिशियली टू रिड्यूस द करंट, व्हाट यू शुड डू? द वोल्टेज अप्लाइड शुड बी स्मॉल। द वोल्टेज अप्लाइड शुड बी स्मॉल। कम वोल्टेज होगा तो क्या होगा? करंट भी कम होगा, ठीक है। करंट कम होगा तो हमारा, हम फिर धीरे धीरे तो मोटर घूमेगी भी स्लो, बिकॉज करंट इज, बिकॉज टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट। अरे अभी बताया था कि नहीं बताया था? इज इट क्लियर? तो वोल्टेज कम तो करंट कम, करंट कम तो टॉर्क कम, तो धीरे धीरे मोटर घूमेगी, धीरे धीरे रोटेट करेगी, ठीक है। और फिर जैसे ही पिकअप करे आप, धीरे धीरे आप पूरा अप्लाइड वोल्टेज लगा दें। तो जैसे अप्लाइड वोल्टेज लगेगा, मोटर पिकअप करके अपना फुल लोड स्पीड पे रन करने लग जाएगी, जिसको नो लोड कहेगा। अगर लोड नहीं लगा है तो उस स्पीड को क्या कहेंगे? You got my point? Is it clear? When no load is there, that speed is called no load. When full load is there, that is called full load speed. Is it clear? अरे समझ में आया कि नहीं आया? तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप इन चीजों कंफ्यूज न हो, ठीक है। कि नो लोड का क्या मतलब हुआ? मोटर खाली चल रही है, मोटर खाली चल रही है। इज इट क्लियर? आपने एक मोटर ली, ठीक है, उसके पंपिंग एक्शन को हटा दिया, सक्शन पाइप हटा दिया, सक्शन पाइप हटा दिया मान लो, तो वो क्या कुछ पानी को सक करेगा? क्या करेगा? क्या नहीं करेगा। तो अब वो मोटर किस फॉर्म में चल रही है? नो लोड। दिस मोटर इज रनिंग ऑन नो लोड। इज इट क्लियर? वरना उसके पास एक आगे काम होता कि भाई मुझे एक पंखे को, उस टरबाइन को चलाना है, और टरबाइन को चलाने का मतलब क्या हुआ? आपका पानी ऊपर कैसे चढ़ता है? कुछ आप मंत्र फूकते हैं, तो कुछ तंत्र क्रिया करते हैं, तो कैसे पानी ऊपर, कैसे नीचे का पानी ऊपर कैसे चढ़ता है? मोटर की सहायता से, जिसको हम पंप कहते हैं। प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करता है। आपने एक टरबाइन उससे जुड़ी हुई होती है, टरबाइन, हाई रोटेटिंग टरबाइन, तो वो रोटेट कर रही है। अब जैसे पंखा रोटेट कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है? अपने आसपास की एयर को डिस्प्ले कर रहा है, डिस्प्लेस्ड। आसपास की एयर को क्या कर रहा है? डिस्प्लेड कर रहा है, ठीक है, हटा रहा है, ठीक है। तो हटाने से यहां क्या क्रिएट हो गया? लो प्रेशर, नॉट वैक्यूम। वैक्यूम करना तो बहुत मुश्किल है। वैक्यूम मतलब तो जीरो एयर प्रेशर। आइडियली वैक्यूम का क्या मतलब होता है? ठीक है, हम एक आगे एक्सपेरिमेंट करते हैं कोटिंग का। कोटिंग का पूरा एक्सपेरिमेंट वैक्यूम में होता है, आइडियली वैक्यूम में होता है। तो उसमें वैक्यूम, तो पूरा एक चैम्बर होता है, क्लोज चैम्बर, उसमें टर्बो पंप लगते हैं। क्या लगते हैं?
टर्बो पंप, उनका काम ये होता है कि जैसे वो क्लोज्ड हुआ उसके अंदर की सारी हवा को बाहर निकालना। तो आइडियली तो आपके अकॉर्डिंग कितना होगा, 0 टॉर, प्रेशर की एक यूनिट क्या है, टॉर। अगर 0 टॉर है तो आपका आइडियल वैक्यूम है। लेकिन 8 घंटे 10 घंटे चलने के बाद भी उसमें आता है 10 मिली टॉर। कितना, 10 मिली टॉर प्रेशर। यू गॉट माय पॉइंट, ठीक है। तो इसका मतलब कि तब जाके हम उसको एक मान सकते हैं प्रैक्टिकल फॉर्म में कि अब ये वैक्यूम क्रिएट हो गया। उस वैक्यूम क्रिएशन में ही इस पदार्थ पर कोटिंग होती है। क्या होती है, वैक्यूम कोटिंग, ठीक है। वैक्यूम के अंदर कोटिंग की, और उसको पर्पस क्या है उसका, ताकि उसके ऊपर, जैसे आपने मान लो मैंने यहां कुछ रखा, ठीक है, और मैं उस पर कुछ कर रहा हूं, तो आउटसाइड आपको नहीं दिख रहे हैं, लेकिन देयर आर स्मॉल पार्टिकल्स आर देयर, माइक्रो पार्टिकल्स आर देयर, नैनो पार्टिकल्स आर देयर। सो आपने कोटिंग तो की आयरन की, सपोज मजबूती देने के लिए किसकी की, आयरन की। इसके आसपास कई ऐसे पार्टिकल्स घूम रहे हैं, सैंड के पार्टिकल्स, इज इट क्लियर, वो जाके क्या हो जाएंगे, उसमें डिपॉजिट हो जाएंगे, और वो समय के साथ उसमें क्रैक डेवलप कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं। तो हमें अगर एक अच्छा चाहिए, हमें चाहिए कि भाई मैं आयरन अगर इसमें डिपॉजिट करूंगा तो उसकी मजबूती, प्योर आयरन डिपॉजिट करूंगा तो उसकी मजबूती बढ़ जाएगी, तो मैं उसको कहां डिपॉजिट करूंगा, वैक्यूम में। कहां डिपॉजिट करूंगा, वैक्यूम में, जहां मैं मान के चल रहा हूं कि कोई भी पार्टिकल्स वहां पर नहीं है। तो और लेकिन यूज क्या होगा उसमें, वैक्यूम क्रिएशन में, हमारा पंप। कौन सा पंप, उसको टर्बो पंप कहते हैं। रोटरी पंप एंड टर्बो पंप बोथ आर बीइंग यूज्ड टू क्रिएट द वैक्यूम इनसाइड अ चैम्बर। इज इट क्लियर। तो ये मैं एप्लीकेशंस बता रहा हूं आपको। आपको लग रहा है सर ये क्या मोटर पढ़ा रहे हो, कहां का है। यू आर बीइंग इंजीनियर, यू आर नॉट अ टेक्नीशियन, you are not a technician, you are not an electrician, you are an engineer of electrical engineering, electrical branch. So you should know not only the practical thing but also know the theoretical aspects, that why we are doing this work. अब आप स्टार्टर देख के आए, देखा कल स्टार्टर किसी ने, हैं कहाँ लगा था, हैं हॉस्टल में लगा, देखा क्या क्या, कितने बटन थे, कौन कौन से, एक ग्रीन और रेड। ग्रीन किसके लिए होता है, हैं स्टार्ट करने के लिए, और रेड, ग्रीन बटन के साथ जो कॉन्टेक्ट जॉइंट होते हैं, ठीक है, वो हमेशा जो 3 फेज के कॉन्टेक्ट होते हैं वो किसमें होते हैं, एनसी या एनओ, एनओ श्योर, एनओ ही होते हैं। ओपन ही रहेगा ना, वरना फिर स्टार्ट करने का मतलब क्या, इज इट क्लियर। और एक ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट भी होता है, वो भी क्या होता है, एनओ, इज इट क्लियर। फिर जैसे ही आप प्रेस करते हो ग्रीन बटन तो क्या होता है, सर्किट क्लोज होता है, किसका, कॉइल का, किसका, कॉइल का। और कॉइल के सर्किट के क्लोज होने से क्या होता है, कॉइल एनर्जाइज होती है, मैग्नेट बनाती है। वो मैग्नेट स्विच के जो पोल है, स्विच के जो पोल है, दो मेटल के होंगे, उसको क्या करेगी, खींचेगी, खींचते क्या होगा, सर्किट क्लोज हो जाएगा। सर्किट क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। सर्किट तो क्लोज हो गया। अब आपने जो बटन दबाया था वहां उंगली वहीं रखोगे क्या, तो बटन के ऊपर छोड़ोगे, इज इट, तो बटन क्या होगा, वापस पीछे आ जाएगा। कौन सी कंडीशन होगी, बटन किस कंडीशन में होता है, स्टार्टिंग बटन जो ग्रीन बटन किस कंडीशन में होता है, एनओ। आपने प्रेस करके उसके ऊपर क्या लगा हुआ, बेसिकली अंदर प्रेस कर रहे हो, आगे मूव कर रहा, क्या लगा हो सकता है, स्प्रिंग। क्या लगा हो सकता है, स्प्रिंग। आपने जैसे इसको प्रेस किया, स्प्रिंग कंप्रेस हुई, सर्किट क्लोज हो गया, कॉइल एनर्जाइज हो गई, मैग्नेट बन गई। मैग्नेट बन के उसने जो ऑक्सिलरी कांटेक्ट और जो मेन कांटेक्ट थे, मेन कांटेक्ट किसके, फेज के, आर वाई बी के, उन तीनों को, उन चारों को क्लोज कर दिया। अब जैसे आपने रिलीज किया तो आपके अकॉर्डिंग तो अब सर्किट डी एनर्जाइज होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। आपने अगर ढंग डायग्राम देखा होगा तो उसमें थ्रू ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स, ऑक्सिलरी का मतलब क्या हुआ, आपको कभी दिमाग में आया नहीं कि सर ऑक्सिलरी क्यों लगा रहे हैं। सो द स्टार्टिंग बटन कम्स टू द अगेन एनओ पोजीशन, एज सून एज यू रिलीज द फिंगर, जैसे आपने फिंगर को रिलीज किया तो वो किस कंडीशन में आ गई, एनओ, एनओ। लेकिन अब सर्किट किसके थ्रू क्लोज हो रहा है, ऑक्सिलरी कांटेक्ट। किसके थ्रू हो रहा है, ऑक्सिलरी कांटेक्ट। अरे समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है।
तो अब ये चलता रहेगा, और जिस समय पानी पूरा फुल हो जाए टंकी में तो उस समय आप जाओगे तो आप किस पे बटन पे दबाओगे, कौन सा, रेड बटन। रेड बटन क्या है, एक उसमें भी कॉन्टैक्ट लगा हुआ है, ठीक है। दैट इज ऑलवेज इन विच कंडीशन, विच कंडीशन, नॉर्मली क्लोज्ड, नॉर्मली क्लोज्ड, ठीक है, नॉर्मली क्लोज। अब आप उसको प्रेस करोगे फिर स्प्रिंग के थ्रू, तो आपने क्या किया, उसको क्या किया, नॉर्मली ओपन। अब नॉर्मली ओपन करते ही सर्किट वापस क्या हो गया, ओपन हो गया, और कॉइल डीएनर्जाइज हो गई। कॉइल डीएनर्जाइज के मैग्नेटिक पावर खत्म हो गया, उसने पोल को वापस छोड़ दिया, तुम जाओ तुम्हारे घर पे, ठीक है, और आपका सर्किट बंद हो गया, मोटर बंद हो गया। अरे समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो कोई बंद मोटर को आप देखना कहाँ का कॉन्टैक्ट्स लगे हुए होते हैं, कॉइल कहाँ होती है, इज इट क्लियर। फिर इनके कनेक्शन भी आपको लैब में करवाएंगे कि कैसे 3 फेज के इनपुट डाले जाते हैं, मोटर के कैसे डाले जाते हैं, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट के कॉन्टैक्ट्स कहाँ होते हैं। अब मान लो खराब हो गया, इज इट क्लियर। यू शुड ऑल्सो नो, इफ यू नो द बेसिक philosophy, you can immediately find out, oh, this is RYB contacts, this is this 94 95, this is the auxiliary contact, this is again 54 55, this is again another contacts. So you will come to know about what is the overload contact, which is the main contacts, which are the auxiliary contact. ये सब चीजें आपको अगर प्रैक्टिकल करोगे तो आपको समझ में आएगी, लेकिन पहले थ्योरी क्लियर होगा तो प्रैक्टिकल ज्यादा समझ में आ जाएगा कि हाँ ये चीज होती है और मैं उसको कर रहा हूँ। What is difference between an engineer and an electrician? Electrician know only this is the contact, if it get damaged I have to repair it, okay, this is the 3 वायर यहाँ आके कनेक्ट हो जाएंगे, 3 वायर यहाँ से नीचे निकल जाएंगे, यहाँ ये ऑक्सिलरी कांटेक्ट है, अगर उसमें काला दिखे तो इसका मतलब कुछ ना कुछ इसमें डैमेज, उसका कार्बन साफ करना है, ये करना है। अब उसको ये नहीं मालूम है कि ये सर्किट ऐसा बनाया क्यों, is it clear? As an engineer, if you have learned by heart, then you will come to know that अरे ये कॉन्टैक्ट किसके लिए बने हुए हैं, is it clear? ठीक है, तो ये एक आपकी जो थ्योरी पढ़कर आप प्रैक्टिकल को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, is it clear? हम आइसोलेटर लगाते हैं, आइसोलेटर क्यों लगाते हैं सब स्टेशन पे। अब एक इलेक्ट्रीशियन को मालूम है, हमारे यहाँ पे जो इलेक्ट्रीशियन अपॉइंटेड है उसको मालूम है कि मुझे आइसोलेटर में ये एक नीचे हैंडल है, ठीक है, ग्लव्स पहनने हैं और इस हैंडल को यूं करना है तो वो आइसोलेटर के कॉन्टैक्ट खुल जाएंगे, खुलते ही मेरा सर्किट सप्लाई से अलग हो गया। ये उसको भी मालूम है, आप करोगे आपको भी मालूम होगा, लेकिन ये किया क्यों जाता है, तो नाम से ही आप अंग्रेजी भाषा जानते हो, आइसोलेट करना मतलब अलग करना, क्या करना, अलग करना, इज इट क्लियर। तो ये एक कन्वेंशनल मेथड है कि मान लो आपके 11 की लाइन आ रही है, क्या आ रही है की लाइन, कहाँ पे आ रही है, ट्रांसफार्मर पे, कहाँ आ रही है, ट्रांसफार्मर में। अब आपको उस ट्रांसफार्मर में काम करना है, उस ट्रांसफार्मर पे काम करना है, तो आप क्या कहोगे, और मैं बोरा गणेश जी जाता हूँ। आप बोरा गणेश जी गए, ठीक है, और उसको कहा कि मेरे को 11 के कैसे दे दूं, मैं सप्लाई कैसे काट दूं तुम्हारी, ठीक है, तुम्हारे ट्रांसफार्मर में काम है, इस ट्रांसफार्मर इस लाइन से कोई और भी लोग जा रहे हैं, सुंदरबास का एरिया भी जा रहा है, सुंदरबास में कहीं नेता बैठे, ठीक है, लाइट 5 मिनट करते ही आपका मान लो वर्क 1 घंटा का रहा, 5-10 मिनट होते ही सब पहुंच जाएंगे, उसकी क्या हालत होगी, तुम्हारे यूनिवर्सिटी में तो कोई बात नहीं, 24 घंटे भी कट हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो नया नगरी है वहां पे तो 5 मिनट में ही हल्ला बोल जाएगा, तो वो आपको शटडाउन नहीं देगा। तो फिर क्या करें सर, अब तो रिपेयर होगा ही नहीं, उम्मीद करें कि कभी वो 11 लाइन, ठीक है, वो कभी फॉल्ट में आए तब जाके हम उसको करेंगे, तो नहीं। तो हम अब ये 11 के भी ट्रांसफार्मर जो लगा हुआ ये हमारा है, किसका, यूनिवर्सिटी का, यूनिवर्सिटी को काम करना है इसके ऊपर। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक आजकल ब्रेकर भी लगाते हैं, क्या लगाए, तो ब्रेकर हमारी लोड साइड, किधर साइड, लोड साइड, ठीक है, तो हमने ब्रेकर से बंद कर दिया तो आपकी सारी लाइटें बंद हो गई, इज इट क्लियर, लाइटें बंद हो गई। लेकिन अब हमें 11 को बंद करना है, वो ट्रांसफार्मर तब काम कर, 11 की सप्लाई तो आ ही रही है, आपने LT सप्लाई बंद कर दी, ठीक है, अब वो 11 के लिए क्या करेगा, व्हाट ही विल डू, ही विल डू विद द हेल्प ऑफ isolator, he will do with the help of
आइसोलेटर। ग्लव पहनेगा, थोड़ा दूर खड़ा रहेगा, क्योंकि कई बार उसमें से आप चिंगारी आपने देखी है, चिंगारी कैसे, स्पार्क कैसे प्रोड्यूस होती है? दो कंडक्टिंग एंड के बीच में हल्का सा स्मॉल एयर गैप। इज इट क्लियर? कितना स्मॉल एयर गैप ऑफ मिलीमीटर, तब क्या प्रोड्यूस होती है? स्पार्क। ये आपके हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग अगर आपका सब्जेक्ट होगा इलेक्टिव के रूप में तो उसमें आप समझेंगे, ठीक है। और कई जैसे साइंस सेंटर्स और होते हैं ना, वहाँ इसको एक्सपेरिमेंट भी होता है, ठीक है। वो दिखाते हैं कि मान लो ये दो कॉन्टैक्ट है, आपस में जुड़े हुए हैं, ये जैसे कॉन्टैक्ट आपस में जुड़े हुए हैं, अब मैं इनको सेपरेट करता हूँ, ये मैंने हल्का सा सेपरेट किया, ठीक है, हल्का सा, बहुत कम, ठीक है। तो इसमें और दोनों के आसपास क्या वोल्टेज लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? वोल्टेज। तो जैसे ही सेपरेट करूंगा क्या पैदा होगी? स्पार्क, ठीक है। आपके कई बार पुराने स्विच नहीं हो जाते, तो आपने देखा होगा जैसे आप ऑन करते एकदम आग निकलती है, स्पार्क निकलती है। वो क्यों? इसका मतलब कहीं ना कहीं कनेक्शन लूज हो गया है और स्प्रिंग के बीच में थोड़ा हल्का सा गैप आ गया है, स्मॉल गैप। सो वोल्टेज इज देयर 220 वोल्ट एंड स्मॉल गैप इज देयर, सो दैट जनरेट्स अ स्पार्क। इज इट क्लियर? तो स्पार्किंग भी आएगी, ठीक है। तो ग्लव्स पहन के थोड़ा दूर रख के उसको, एक हैंडल होता है, उस हैंडल से आपके ट्रांसफार्मर पे ये तीनों 1 2 3 जुड़े हुए होते हैं, तो एक ही से सारा कनेक्शन, तो आपका ये सेपरेट हो गया। अब वो जाके ट्रांसफार्मर पे काम कर सकता है। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखने की योग्य होती है, वो क्या होती है? आइसोलेटर काट दिया, ठीक है। अब मान लो आपके कैपेसिटर बैंक लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? कैपेसिटर बैंक। कैपेसिटर बैंक किस लिए लगाते हैं? टू इम्प्रूव द पावर। कैपेसिटर भी एक चार्ज बॉडी है, सोर्स है, ठीक है। वो तो उधर एलटी साइड लगा हुआ है, तो वो कैपेसिटर बैंक क्या करेगा? अपना सोर्स के रूप में काम करके उधर जाएगा, तो कैपेसिटर बैंक को भी बंद करना जरूरी है, ठीक है? अगर मान लो कोई लीकेज करंट रह गया है तो हमारे आइसोलेटर को भी अर्थिंग करना जरूरी है, ठीक है। फुल प्रोटेक्शन, क्या? फुल प्रोटेक्शन। तो पहले कैपेसिटर बैंक भी बंद करो। इज इट क्लियर? एक बार ऐसा हुआ था, ये जब मैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में था तो ऐसे ही हमने, अब उस समय तो हमने वो लाइन काटी थी 132 kV की, कितने की? सॉरी 33 kV की, कितने की? 33 kV की लाइन, ठीक है। तो मैंने हेल्पर को कहा भाई आप यूँ करना कि कैपेसिटर बैंक देख के आओ कि वो बंद है या चालू है। अब वो नशे में था, मैंने भी बिलीव कर लिया, नया नया लगा हुआ था। उसने कहा हाँ बंद है, मैंने मान लिया। यहाँ गलती होती है, इसलिए ना इलेक्ट्रिसिटी में कहता हूँ ना, तभी से मेरा वो नियम बना, जो डर गया वो बच गया। किसी की मानो मत, आप खुद आंख पे देख के और बंद है कि नहीं है, ठीक है। बंद है तो उसके मानो। लोग तुम्हारी तरह नशों में होते हैं, ठीक है। 10 बजे का टाइम देते हैं, 10:15 बजे आते हैं। इज इट क्लियर? तो ये दिस इज नॉट एन फेयर, दिस इज नॉट एन फेयर। इज इट क्लियर? सो what happens that as soon as the electrician has opened that isolator, since capacitor bank was on, तो उसका सर्किट क्लोज्ड हो गया, ठीक है। इसका मतलब वो वोल्टेज दे रहा था, किसको दे रहा था? आइसोलेटर को। किसको दे रहा था? आइसोलेटर को। मैंने पीछे से सप्लाई बंद करवा दी, 132 kV की सप्लाई बंद करवा दी, तो आगे 33 की नहीं जा रही थी। इज इट क्लियर? मगर उस आइसोलेटर को सप्लाई कहां से मिल रही थी? कैपेसिटर बैंक से। तो जैसे ही मूव किया, स्पार्किंग, और वो स्पार्किंग मान लो उसका डायरेक्शन अगर नीचे की तरफ जहां वो आदमी खड़ा है तो वहीं दाह संस्कार। इज इट क्लियर? तो बहुत संभल के काम करना पड़ता है। डरना इतना है कि हम प्रिकॉशनरी वे में काम करें, यूं मतलब किसी पे विश्वास नहीं करें, खुद अपनी आंखों से देखें सर्किट है कि नहीं। वो तो कुछ इंसिडेंट हुआ नहीं, ठीक है, बट दिस टाइप ऑफ सिचुएशन कैन हैपन। जैसे अभी हाल ही में आपके जब अभी लाइटें बंद थी ना, 7 दिन तक बंद रही थी। इज इट क्लियर? तो आई वेंट टू द सब स्टेशन फॉर टेकिंग शटडाउन, ठीक है।
तो उसने शटडाउन दे दिया पहली बार। तो फिर नागेंद्र जो हमारे इलेक्ट्रीशियन है उसने कुछ रिपेयर किया। रिपेयर करने के बाद फिर उसने कहा सर आप क्लोज कीजिए, आपको यहाँ पर कोई था ही नहीं। फिर मैं तुम्हारी शक्लें देखते हुए कि हॉस्टल में लोग कैसे रहेंगे क्या करेंगे, तो मैं वापस गया बोरा गणेश जी वहाँ उसको शटडाउन क्लियर करने के लिए। उसने कहा सर कोई लफड़ा तो नहीं है। उसने क्या वर्ड यूज़ किया, मैंने कहा लफड़ा तो है। मैंने कहा वो तो चेक कर रहा है फॉल्ट, ठीक है कि सर उसका क्या है कि जो इनसाइड एक पैनल लगता है, इनसाइड पैनल से आप ब्रेकर को ऑन ऑफ कर सकते हो, लेकिन उसका क्या है कि ब्रेकर का जो केबल थी वो खराब थी, तो ब्रेकर को वहीं यार्ड में जाकर ही ऑन कर सकते थे, ब्रेकर को यार्ड में जाकर ही ऑन कर सकते थे, ठीक है। तो उसने ब्रेकर को ऑन किया और फिर आइसोलेटर जो ओपन थे उसको लगाया और मुझे कहा सर आप पास आइए। मैं तो नहीं आता, ठीक है। मुझे मालूम था कि जैसे ही क्लोज करेगा वहां फॉल्ट है, क्योंकि अभी अनसर्टेनिटी है, फॉल्ट क्लियर हुआ नहीं है। इज इट क्लियर? तो डेफिनेटली वो स्पार्क, उसका रिफ्लेक्शन इधर आएगा और स्पार्क होगी, ठीक है। मैंने कहा नहीं मैं तो नहीं आऊंगा। अच्छा, उसने खुद ने, जैसे मैंने कहा लफड़ा है, तो वो अपना ग्लव्स, इतने बड़े बड़े ग्लव्स लेकर आ गया, हेलमेट पहन के लेकर आ गया, जूते उसने बड़े स्ट्रांग वाले पहन लिए। मैंने कहा तू तो प्रिकॉशन कर रहा है, मुझे ऐसे छोड़ रहा है। मतलब उसकी चालाकी देखो, ठीक है। ये तो मैं समझदार था, मैं तो नहीं आऊंगा, मैं तो दूर गेट पे खड़ा हो गया। ओके सर पास में था, मैं बिल्कुल नहीं आऊंगा। उसको समझ गया कि ये आदमी यहाँ पे कुछ ना कुछ काम किया हुआ है। अब मान लो मिनेरे जैसा हो, ठीक है, थोड़ी बहुत लॉलीपॉप, अरे दिखाऊंगा अभी आओ तो सही कैसे ऑन होता है। सर यू गॉट माय पॉइंट, ठीक है। तो फिर वही हुआ, फॉल्ट था सिस्टम में, और जैसे ही ऑन किया एकदम स्पार्किंग, और इतनी तेज स्पार्किंग हुई कि मैं इतना दूर खड़ा था तो यहाँ आकर गिरी। इज इट क्लियर? तो बहुत संभल के काम करना पड़ता। अब उनको संभल के काम करो, लेकिन वापस हमारे हिंदुस्तान में ये भी है कि जब तक जुगाड़ में चल रहा है जुगाड़ चलने दो। कब? जब तक कि सिस्टम बिल्कुल ही डिटोरेट होकर बलि ना दे दे कोई। अब उसकी ड्यूटी बनती है उसकी कि वो उस केबल को रिपेयर करवाए। वो दिया इसीलिए पैनल से ऑपरेट करने का, अंदर सब कंट्रोल रूम से, ताकि वहां जाकर ऑपरेट करना नहीं पड़े। लेकिन अब खराब है तो वो आज भी वही सिस्टम वही चल रहा है। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है। तो हम चीजें लाएं, वापस को मेंटेन करना, उसको प्रॉपर वे में करना, ये भी हमारी एक इंजीनियर की ड्यूटी है। तो ये वो करवाएगा कौन? वो तो बेचारा हेल्पर है। इज इट क्लियर? 8 पास हेल्पर है, या ज्यादा से ज्यादा ITI किया हुआ SB होगा, ठीक है। लेकिन ये कॉन्शियसनेस किस में आएगा कि आप चीजें खराब हो गई? वो किस में आएगा? इंजीनियर में। किस में आएगा? इंजीनियर में। लेकिन ये इस तरह की अगर इंजीनियरिंग की रही कि लेट आओगे, ठीक है, तो फिर सिस्टम भी लेट ही होगा, वो आज तक रिपेयर नहीं हो रहा है। और आश्चर्य करोगे कि वहां पर जो इंजीनियर लगा हुआ CTI से ही पास आउट है। तो फिर मुझे ये घटना याद आ जाती कि अच्छा क्लास में लेट आए होंगे, तो उन्होंने देखा ठीक है चल रहा है ऐसा ही। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि चीजों को हम इम्प्रूव करें। अरे समझ में आया कि नहीं आया? अब आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, ये इसका स्कीमेटिक डायग्राम है, ठीक है। और स्कीमेटिक डायग्राम से क्लियर हो गया कि इनिशियली व्हाट हैपेंस दैट वी विल apply a reduced voltage. Reduced voltage means reduced current, and therefore reduced current means now the motor is in safe operation. As soon as the motor pick up the speed, we will provide the full voltage, and therefore the motor will pick up the full load or no load speed. Okay. Power loss is much less in this type of starting. Power loss इसमें क्या है? बहुत ही कम है। क्यों? Because we have applied a technique that apply the voltage, low voltage in the initial time, and then motor pick up the apply the full voltage. और इंडक्टिव कॉइल है, तो प्योर इंडक्टिव कॉइल में रेजिस्टेंस कितना होता है? 0। और इन जनरल प्रैक्टिकल इंडक्टिव कॉइल में रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, वहाँ नो मोर लाइक दिस 0.5 ओम, ठीक है। आप चाहकर मेजर, आपने पहले अपने ना ट्यूबलाइट, आजकल तो LED ट्यूबलाइट है, पहले वो चोक कॉइल वाली ट्यूबलाइट देखी होगी आपने, ठीक है। तो चोक कॉइल का एक्सपेरिमेंट ही आपके फर्स्ट ईयर में है, क्लियर, टू फाइंड आउट द पैरामीटर ऑफ द चोक कॉइल। So ideally we assume choke coil is to be an inductive.
आदर्श अवस्था में हम चोक कॉइल को क्या मानते हैं? इंडक्टिव, लेकिन प्रैक्टिकली उसमें इंडक्टेंस भी है और रेजिस्टेंस भी है। तो उसका रेजिस्टेंस अगर मेजर करना है तो क्या करते हैं हम लैब में? मल्टीमीटर लेते हैं, उसको निकाल देते हैं सर्किट से, उसके दो कॉन्टैक्ट होते हैं, उन पे एक पे प्लस एक पर ब्लैक, रेड और ब्लैक नॉब्स रखते हैं और रेजिस्टेंस की नॉब को चालू करते हैं तो हमें मालूम पड़ जाता है इसका 200 या 300 ओम करके कोई रेजिस्टेंस है, या 50 ओम या 40 ओम जो भी है। इज इट क्लियर? और उसका इंडक्टेंस कैसे निकालते हैं? हाउ टू फाइंड आउट द इंडक्टेंस ऑफ एन चोक कॉइल, प्रैक्टिकल चोक कॉइल? हाँ, अपन एक वी प्रोवाइड एन वोल्टेज, आपने वोल्टेज दे दिया और क्या मेजर करेंगे? करंट। क्या मेजर करेंगे? करंट, ठीक है। चोक कॉइल में आपने वोल्टेज लगा दिया लाइक दिस, यहां आपने वोल्टेज मेजर कर लिया, यहां आपने करंट मेजर कर लिया, ठीक है। ये एसी सोर्स है, ये कौन सा सोर्स है? एसी सोर्स, ठीक है। अब आप जो V और I आया, आपका क्या क्या है? V और, तो V is equal to how much? What is there? Z. It is not DC, it is an impedance. It is an impedance which contains both resistance and inductance. So we have performed this on AC. So V by I will give you what? Z. And Z is what? For an inductive coil? R square plus. So you know R, you know Z. Can you find out X? Simply Z square minus R square under root will give you X. So once you know X, what is X? 2 pi F. 2 is constant, pi is constant. What is the F is also constant? How much? 50 Hertz. So can you find 2 pi FL? Sorry, 2 pi FL. So can you find out L? L is equal to X upon 2 pi F. So that's how practically we find out the inductance of a coil. अरे समझ में आया कि नहीं? चीजें सब आसान है, बस एक बार प्रैक्टिकल करोगे। ये हमने फर्स्ट ईयर में किया था जब मैं स्टूडेंट था, वी डिड इन द फर्स्ट ईयर, आई स्टिल वी रिमेंबर इट। इज इट क्लियर? टू फाइंड आउट द इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल। रेजिस्टेंस कैसे? मल्टीमीटर से। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मैंने क्या कहा था कि चोक कॉइल को सर्किट से डिस्कनेक्ट करना है। यूं नहीं कि आपने ये सर्किट बना हुआ है, अरे सर ने कहा था ये लो लगा देते हैं, तो वो सर्किट के जो दूसरे सोर्स और उनके भी रेजिस्टेंस को शामिल करके आपको बता देगा। यू गॉट माय पॉइंट? ठीक है। तो आपको सर्किट से डिस्कनेक्ट करके उसको फिर मेजर करना है उसका रेजिस्टेंस। अब हम बात करते हैं, ठीक है। सो दिस इज द मैथमेटिक्स व्हिच इज गिवन, अगेन द सेम थिंग that we have already obtained, that torque is proportional to starting current. Torque is proportional to starting current, and starting current we are reducing by applying less voltage. By applying less voltage, the advantage it offers that it uses the power loss is much. It can be used for both star and delta connected, and it is expensive. But it is expensive because coils are being used. रेजिस्टेंस तो क्या है, मास लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग होती है तो थोड़े सस्ते हैं, लेकिन कॉइल्स क्या है, थोड़ी महंगी है, तो थोड़ा बहुत ये क्या है, एक्सपेंसिव है, मगर बट वेरी यूजफुल, लॉसेस आर वेरी लेस। तीसरा जो इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या है? स्टार डेल्टा स्टार्टर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में भी पूछा जा सकता है, पूछा तो कुछ भी जा सकता है, पूछा पूरा 5 मार्क्स का क्वेश्चन। डिस्क्राइब द डिफरेंट स्टार्टिंग मेथड ऑफ एन इंडक्शन मोटर, ठीक है। तो पहला पूछा जा सकता है, इज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग, और फिर डिस्क्राइब ऑल द स्टार्टिंग मेथड्स ऑफ द। तो आप है ना वहां कंफ्यूज हो जाओगे, जिसने ढंग से नहीं पढ़ा, जो ये लेट आता है ना क्लासों में, ये आते भी नहीं है, तो वो कहेगा अच्छा इसका मतलब सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है, तभी तो स्टार्टिंग मेथड है, ठीक है। वो क्या, नो, वो क्या लिखेगा, नो इट इज नॉट एन सेल्फ स्टार्टिंग, वी हैव टू स्टार्ट इट बाय फॉलोइंग मेथड्स, और उसको मालूम ही नहीं होगा कौन सा मेथड है, तो वी विद मैनुअली वी कैन स्टार्ट इट, ठीक है। तो इस प्रकार के वो कुछ मेथड लिखेगा, ठीक है। तो जीरो फिर कहेगा अरे 5 में से 5, फिर मेरे पास आएगा, सर ये मशीन में मेरा इतना अच्छा पेपर हुआ था सर, पूरा भर के आया सर, फिर मेरी बैक आ गई। वो बैक इसलिए आ गई क्योंकि आपने ध्यान से पढ़ा नहीं।
एग्जामिनर के इज इंडक्शन मोटर आर सेल्फ स्टार्टिंग, डिस्क्राइब ऑल द मेथड्स ऑफ स्टार्टिंग मेथड और डिस्क्राइब ऑल द स्टार्टिंग मेथड। तो वहां वो थोड़ा दिमाग लगाएगा, पढ़ा तो है नहीं कि इसका मतलब सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है, तभी तो स्टार्टिंग मेथड है, जबकि उसका रीजन क्या है कि स्टार्टिंग करंट इज हाई, स्टार्टिंग करंट इज, दो इट इज सेल्फ स्टार्टिंग बट स्टार्टिंग करंट इज हाई। देखिए अब इसमें क्या होता है कि ये हमारी 3 वाइंडिंग है, कौन सी? स्टेटर वाइंडिंग, कौन सी है? 3 फेज होती है, ठीक है। इन तीनों में देखिए अब मैं ना, हर वाइंडिंग के कितने टर्मिनल होते हैं? हर कितने टर्मिनल होते हैं बताइए, हैं? हाउ मेनी टर्मिनल